Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning Bell. I am with you with a new video, that is Viva and interview questions of operating system. Questions are explained with their answers. Let's start it. First question is define operating system. Before I define operating system, I will introduce the computer system briefly. What is computer system? Computer system is combination of two components, hardware and software. Hardware are the physical components of computer that we can see and touch. These components include, means these hardware parts includes keyboard, mouse, LCDs, system unit, speaker, microphone, printer. All these are the parts of hardware. What is software? Software are the instructions or programs that are given to the computer to solve some problems. There are two types of software, application software and system software. System software is a software that runs the computer system, means manage the computer system and makes it usable for the user. Operating system is also an example of system software. Other examples are utility programs, antivirus. These are the examples of system software. And now I define what is application software. When the computer system is workable or usable for us, then the user use some software according to their requirement or need. For example, any document create करने के लिए आपने MS Word यूज किया, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए आपने PowerPoint यूज किया, तो then these are the PowerPoint, Excel, Microsoft Word, image software. All these are the types of application software. The first thing that is very necessary जो कि कंप्यूटर सिस्टम को वर्केबल बनाती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रॉपरली कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा, तब तक कंप्यूटर यूजेबल नहीं होगा. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा. आफ्टर दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर यूज करना चाहता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो उसको इंस्टॉल करेगा. Now we come to the operating system. Operating system is an example of system software. नेम से पता चलता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस सिस्टम को, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम को यूजर के लिए वर्केबल बनाता है, इस सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसके तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करता है. दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, उसको रनेबल बनाता है. डेफिनेशन आपके सामने वेरी क्लियर मैंने दी है. OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स कि जितने इसके मैंने आपको ऑलरेडी बताया कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, उन तमाम फिजिकल कंपोनेंट्स और यूजर के दरमियान एक इंटरमीडियरी मीन्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि यूजर इस मशीन को इजिली यूज कर सके. एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, इन तमाम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है. कौन सा सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम. System is a system software that runs the hardware of the computer. The examples of operating system include Windows, Mac operating system, Linux, Android. All these are the examples of operating system. Most commonly जो आप operating system अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, that is the Windows. Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11. These are the different versions of Windows that we can use on our system. Next question is what is multiprogramming? Multiprogramming is the rapid switching of CPU between many processes in memory. Means there are many processes in memory that are competing for CPU. तो CPU किसको मिलेगा? एक प्रोसेस से नेक्स्ट प्रोसेस को शिफ्ट किया जाएगा. CPU के इस्तेमाल को मैक्सिमम करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग यूज होगी कि एक टाइम में मोर देन वन प्रोग्राम वर्क करेंगे. नेक्स्ट वी सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग. इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग की डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी. मल्टी प्रोग्रामिंग रन्स मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम ऑन वन प्रोसेसर. इनमें एक ही प्रोसेसर पर एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को रन किया जाता है. इट वॉज डिवेल्प टू improve processor and IO resource utilization, and multiprocessing was developed to increase the processing speed by allowing parallel computation. Parallel computation का क्या मीनिंग है कि at the same time there are more than one processor working. और जब एक से ज्यादा प्रोसेसर काम कर रहे होंगे तो हर प्रोसेसर पर वर्क सेपरेट होगा और एक टाइम में
जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टी प्रोसेसर्स जो है वो एट अ टाइम वर्क करते हैं। इन मल्टी प्रोसेसिंग मोर देन वन प्रोसेसर्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, इस मेथड में जितने प्रोसेसर्स हैं वो सब प्रोसेसर एक ही टास्क पर वर्क करेंगे। बट एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, इन दिस each processor is dedicated to a particular task. Next is, what is kernel? Kernel, it is the core of operating system, also called nucleus, because it provides the most basic interface between the computer itself and rest of the operating system. Computer and operating system के अदर जितने भी पार्ट्स हैं उनके दरमियान एक इंटरफेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 is define operating system modes. There are two execution modes, user mode and kernel mode. The user applications run in user mode and core operating system components run in kernel mode. Next, question number 7, define system calls. System calls provide interface between a user program and operating system. It means when user program requires some services from operating system, then system call is used. Next is question number 8, define interrupt. Interrupt means hardware generated change of flow, that is called interrupt. एक प्रोग्राम रन हो रहा था, मीन्स के वन टास्क इज बीइंग परफॉर्म्ड, न्यू कमिंग प्रोग्राम, व्हेन अ न्यू प्रोग्राम अराइव्स द सिस्टम लिसन्स टू दैट। इट मीन्स जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम था उसको स्टॉप किया गया, वो डिस्टर्ब हुआ, ये इंटरप्ट कहलाएगा, और जो न्यू प्रोग्राम आया है उसको सुना जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर की वजह से जो इंटरप्ट आएंगी दैट आर कॉल्ड द ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रोसेस एंड प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड द प्रोसेस। जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो प्रोग्राम प्रोसेस बन जाएगा। प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव एंटिटी एंड प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी। प्रोसेस स्टेट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ करंट एक्टिविटी इन अ प्रोसेस, कि प्रोसेस में करंटली कौन सा काम हो रहा है। दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस स्टेट। देयर आर प्रोसेस स्टेट्स। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस चेंज एज इट एग्जीक्यूट्स। डिफरेंट स्टेट्स आर न्यू, रेडी, रनिंग, wait. Wait is also called blocked and terminated. These are the different states of a process. First of all, process comes in new state, and then when it comes in RAM, it becomes ready, and when it gets CPU for execution, then it comes in running state, and if it waits for some IO devices or it waits for some another action, so then it comes in wait or block state. When a process completes its working, then it is in terminated state. Next, question number 10, what is the purpose of PCB? PCB क्या है? Process Control Block. It is a data structure. It contains all information for a process to be used for controlling its execution. Every process has its own PCB. हर प्रोसेस का अपना पीसीबी है जिसमें उस प्रोसेस की तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। A part of operating system called scheduler that decides which process will get the resource. The very important resource in the computer system is CPU. कि CPU किसको मिलेगा ये कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसको स्केड्यूलर कहा जाएगा। It is called and this technique is called the process scheduling, जिसमें ये डिसाइड करेगा स्केड्यूलर कि किस प्रोसेस को CPU प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, how many types of scheduler are? There are 3 types of scheduler. First is long term scheduler, second is short term scheduler, third one is medium scheduler. Now we discuss one by one. First is long term scheduler. It is also called job scheduler. It is used to select a job or user program from job queue to the ready queue in main memory. जॉब क्यू कौन सी है? न्यू स्टेट वाली, कि जब प्रोसेस जो है वो न्यू स्टेट में होगा तो न्यू स्टेट में वो प्रोसेस होंगे जो जॉब क्यू में लगे हुए हैं। अब जॉब क्यू से प्रोसेस को मेन मेमोरी में लाना है। मेन मेमोरी कौन सी है? रैम। तो जब एक प्रोसेस जॉब क्यू से न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाता है तो इट मीन्स कि वो रैम में है। तो रैम में आने के लिए जरूरी है कि प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी में आए, मीन्स के रेडी स्टेट में आए। तो रेडी स्टेट में उसको कौन लेकर आएगा, कौन डिसाइड करेगा?
कि जॉब क्यू से उठाकर एक प्रोसेस को रेडी क्यू में शिफ्ट करना है, मेन मेमोरी में भेजना है, दिस इज डिसाइडेड बाय द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, सो इट इज कॉल्ड द जॉब स्केड्यूलर। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। अब एक प्रोसेस जो है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ने जॉब क्यू से उठाकर रेडी क्यू में डाल दिया। अब रेडी क्यू से जो नेक्स्ट स्टेट है वो कौन सी है, रनिंग स्टेट। अब उसको रन करना है, मींस सीपीयू प्रोवाइड करना है। तो सीपीयू कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, स्केड्यूलर, दैट इज द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, आल्सो नोन एज सीपीयू स्केड्यूलर, बिकॉज ये सीपीयू का कंट्रोल प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोसेस को जो कि रेडी क्यू में है। अब रेडी क्यू में भी मोर देन वन प्रोसेस है जो कि सीपीयू के लिए कंपीट कर रहे हैं। इन प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम पर सीपीयू प्रोवाइड किया जाएगा। तो किस प्रोसेस को सीपीयू प्रोवाइड करेगा, कौन करेगा, ये शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर डिसाइड करता है। तो सो दिस इज कॉल्ड द सीपीयू स्केड्यूलर and it allocates CPU to that process for execution. Next is the medium term scheduler. It removes process temporarily from main memory and places them on secondary storage such as disk drive. It moves back to main memory when required. Means एक प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूशन में था, सीपीयू यूज कर रहा था, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट थी बट अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, टेम्परेरी आरजी तौर पे उस प्रोसेस को उठाकर वापस भेज दिया मेन मेमोरी से, किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में, मींस के रेडी क्यू से उसको निकाल दिया गया। मीडियम टर्म स्केड्यूलर ने ये काम किया। दिस इज द ड्यूटी ऑफ मीडियम टर्म स्केड्यूलर। और जब जरूरत पड़ेगी, व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड, देन उसको वापस लाया जाएगा मेन मेमोरी में और मेन मेमोरी से ऑनवर्ड फिर उस पर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर काम करेगा कि उसको सीपीयू का कंट्रोल दिया जाएगा। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ मीडियम टर्म स्केड्यूलर के टेम्परेरीली एक प्रोसेस को बैक करना, सेकेंडरी स्टोरेज पर वापस भेजना मेन मेमोरी से, और जब उसको अगेन एग्जीक्यूट करना है तो देन उसको सेकेंडरी स्टोरेज से रेडी क्यू मींस रैम में वापस लेकर आना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडियम टर्म स्केड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अभी हमने बात की कि एक प्रोसेस से सीपीयू को लेकर दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाता है। तो जो प्रीवियस प्रोसेस है जिससे सीपीयू लेकर नेक्स्ट प्रोसेस को दिया गया, उस प्रोसेस की भी स्टेट को सेव करना, मींस व्हेन स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस, दिस रिक्वायर्स टू सेव द स्टेट ऑफ ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द सेव स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस। दिस टास्क इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। हाउ मेनी टास्क इसका परफॉर्म हो चुका था, हाउ मेनी वाज रिमेनिंग, उसकी तमाम डिटेल को सेव कर लिया जाएगा, उसकी जो कि स्टेट है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। नेक्स्ट इज डिफाइन आईपीसी। आईपीसी मींस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दिस इज अ mechanism that is used by process to exchange data and information. There are two types of process: independent process and cooperating process. Independent process, a process that cannot affect or be affected by any other process executing in the system. Means जो ना तो किसी के साथ कुछ शेयर करेगा, ना किसी को कुछ अफेक्ट करेगा, अपना काम जो है वो अकेले खुद ही करेगा। That is the independent process. And cooperating process that can affect or be affected by any other process executing in the system. Next, question number 15, define thread. Thread, it is a lightweight process. A thread is basic unit of CPU utilization. There must be at least one thread in a process. हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि प्रोसेस जो है वो एक प्रोग्राम है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आएगा, मींस एग्जीक्यूट होगा, देन इट बिकम्स अ प्रोसेस। और प्रोसेस बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड जो है इसको लाइट वेट प्रोसेस ही कहा जाएगा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मींस सीपीयू यूज करने की जो बेसिक यूनिट है वो एक थ्रेड है। एक प्रोसेस में एक थ्रेड लाजमी होगा, मोर देन वन थ्रेड भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट। सीपीयू बर्स्ट इज अ टाइम इंटरवल व्हेन अ प्रोसेस यूजेस सीपीयू ओनली। इस टाइम में एक प्रोसेस ओनली सीपीयू यूज करेगा तो वो सीपीयू बर्स्ट कहलाएगा। आईओ बर्स्ट क्या है, वो ऐसा टाइम इंटरवल है व्हेन अ प्रोसेस यूजेस आईओ डिवाइसेस ओनली। आईओ मीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कि जब एक प्रोसेस ओनली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज करता है तो उस टाइम को आईओ बर्स्ट कहा जाएगा। अब अगर एक प्रोसेस में सीपीयू बर्स्ट ज्यादा है तो वो सीपीयू बाउंड कहलाएगा, अगर एक प्रोसेस में आईओ बर्स्ट ज्यादा है तो वो आईओ बाउंड कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव scheduling. प्रिमिटिव scheduling क्या है, when the CPU is allocated to the process for a limited time
whereas in non-primitive scheduling the CPU is allocated to the process till it terminates or switches to the waiting states. इसका क्या मीनिंग है कि प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग में किसी भी प्रोसेस को जब CPU दिया जाएगा तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाएगा, उसके बाद चाहे उसका काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ उससे CPU वापस ले लिया जाएगा। बट नॉन प्रिमिटिव में क्या है कि जब एक प्रोसेस को CPU एलोकेट कर दिया जाएगा तो जब तक वो प्रोसेस अपना काम कंप्लीट ना कर ले, मींस कि वो टर्मिनेट ना हो जाए या फिर वो वेटिंग स्टेट में ना चला जाए, मीन्स कि उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अनदर टास्क जो है वो परफॉर्म करना है, लाइक उसको किसी इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जरूरत है तो वो उसके लिए वेट कर रहा है, तो उसको वेटिंग स्टेट में ना डाला जाए या फिर वो टर्मिनेट ना हो जाए, तो तब तक उस प्रोसेस से CPU वापस नहीं लिया जा सकता। मीन्स द एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन primitive scheduling is interrupted in the middle of execution when a high priority one comes, whereas the executing process in non-primitive scheduling is not interrupted in the middle of execution and waits till its execution. फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए सेकंड पॉइंट इंक्लूड किया है कि प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग में जब भी एक न्यू प्रोसेस आता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है या जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक न्यू प्रोसेस जो जिसकी इंपॉर्टेंस समझ में ज्यादा है वो आता है, और जैसे ही वो आता है तो जो ऑलरेडी करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उससे CPU लेकर न्यू वन को दे दिया जाता है चाहे उसका काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। ये प्रिमिटिव है। मीन्स के फोर्सिबली जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उससे रिसोर्स कौन सा है, CPU वापस ले लिया जाता है। और नॉन प्रिमिटिव में ऐसा नहीं है, नॉन प्रिमिटिव में उसको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है वो इंटरप्ट नहीं होगा, उसकी एग्जीक्यूशन का वेट किया जाएगा। मींस कि जो न्यू प्रोसेस आएगा वो वेट करेगा उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज डिस्पैचर? इट इज अ प्रोग्राम दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU to the process selected by the scheduler। अब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एक पार्ट ने डिसाइड कर लिया कि किस प्रोसेस को CPU प्रोवाइड करना है, और वो पार्ट कौन सा था, स्केड्यूलर ने डिसाइड किया कि किस प्रोसेस को CPU का कंट्रोल देना है। अब वो CPU कंट्रोल रियल में कौन प्रोवाइड करेगा, that is also part of operating system called dispatcher। डिस्पैचर ने क्या करना है कि जो पहले से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उससे CPU लेकर न्यू प्रोसेस को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थ्रूपुट? नंबर ऑफ जॉब्स डन पर टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक सेकंड में कितना काम कंप्लीट हुआ है, दिस इज कॉल्ड द थ्रूपुट। 20 scheduling algorithms। There are 4 main scheduling algorithms. First one is first come first serve. It is only non-primitive, means के प्रिमिटिव जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम में अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे कि नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो लाइन में पहले आएगा उसकी टर्न पहले आएगी। फॉर एग्जांपल आप फीस सबमिट करवाने के लिए एक क्यू में खड़े हैं, तो जो लाइन में स्टूडेंट्स पहले आ रहे हैं तो उनकी टर्न भी पहले आएगी, वो फीस पहले सबमिट करवाएंगे। सेम वही मेथड इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में भी अप्लाई होगा कि इसमें जो प्रोसेस रेडी क्यू में पहले आएंगे उनको CPU पहले प्रोवाइड किया जाएगा। और ये ओनली नॉन प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि नॉन प्रिमिशन में क्या होगा कि जब एक प्रोसेस को CPU मिलेगा तो वो अपना काम कंप्लीट करेगा, जब तक वो काम कंप्लीट ना कर ले या खुद अपनी मर्जी से CPU को रिलीज ना करे उससे CPU फोर्सिबली रिलीज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या है कि शॉर्टेस्ट जॉब जिसकी होगी उसको CPU पहले मिलेगा। शॉर्टेस्ट जॉब के क्या मीनिंग है, मीन्स के काम कितना करना है, एक प्रोसेस को CPU टाइम कितना रिक्वायर है, मीन्स कितनी देर तक उसमें एग्जीक्यूट होना है। एग्जीक्यूशन टाइम जो है इसका रन टाइम CPU टाइम कहलाएगा कि कितनी देर CPU यूज करेगा, जो कि उसकी जॉब टाइम भी कहलाएगा। तो इसमें ये देखा जाएगा कि जितने प्रोसेस लाइन में आए हैं उनमें से जिसका CPU टाइम सबसे कम है, मीन्स के जिसने सबसे कम टाइम के लिए CPU यूज करना है उसको CPU जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें जो है प्रिमिटिव भी है और नॉन प्रिमिटिव भी है। नॉन प्रिमिटिव
शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होगा कि द रिसोर्स सीपीयू इज नॉट फोर्सिबली रिलीज्ड until a process completes its task. The process voluntarily release the resource. कि एक प्रोसेस को जब सीपीयू मिल जाएगा तो वो अपना काम कंप्लीट करेगा, अपनी मर्जी से वो रिसोर्स में सीपीयू को रिलीज करेगा, उससे फोर्सिबली जो है वो रिसोर्स नहीं लिया जाएगा. But in primitive shortest job first, the CPU is released from currently being executed process even its task means CPU time is not completed. When another process comes with the CPU time that is shorter than the remaining time of currently executing process. For example, P1 जो है वो वर्किंग में था, एग्जीक्यूटिंग में था और नेक्स्ट P2 आया. P2 का जो CPU टाइम है वो P1 का जो रिमेनिंग टाइम रह गया है. फॉर एग्जाम्पल P1 में टोटल 5 सेकंड एग्जीक्यूट होना था, उनमें से 3 सेकंड उसने CPU यूज किया, 2 सेकंड उसके रिमेनिंग है. बट P2 अराइव हुआ और उसका जो CPU टाइम है वो ओनली 1 सेकंड है. मींस कि अब उसका जो 1 सेकंड टाइम है जो P1 काम कर रहा था उसके रिमेनिंग अभी 2 सेकंड्स है, तो उसके रिमेनिंग टाइम से जो न्यू प्रोसेस P2 आ रहा है उसका टाइम शॉर्ट है. तो देन क्या होगा, प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में P1 जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्टॉप करके उससे फोर्सिबली CPU लेकर न्यू जो प्रोसेस है विद शॉर्टेस्ट जॉब उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड द प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम. नेक्स्ट एल्गोरिदम इज प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग. प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में ये देखा जाएगा कि लाइन में जो प्रोसेस आए हैं उनमें से हाई प्रायोरिटी किसकी है, नंबर असाइन किया गया, उस नंबर के अकॉर्डिंग तमाम प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेट कर दी जाती है. मोस्टली ये नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में सेट किए जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट किए जा सकते हैं. प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में भी प्रिमिटिव भी है एंड नॉन प्रिमिटिव भी है. तो दिस इज कॉल्ड द प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग. But in non-preemptive priority scheduling, the resource is not forcibly released until a process completes its task. Even a new high priority process comes, the process voluntarily release the resource. कि जब तक प्रोसेस खुद ना चाहे तब तक उससे सीपीयू नहीं लिया जाएगा. प्रोसेस जिसको एक बार सीपीयू मिल गया, नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में भी वो अपना काम कंप्लीट करेगा, इससे फोर्सिबली सीपीयू नहीं लिया जाएगा. नेक्स्ट इज राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग. राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग जो है ये ओनली प्रिमिटिव है, मींस के इसमें जो वर्किंग है वो प्रिमिटिव होगी, नॉन प्रिमिटिव नहीं होगी. तो इन राउंड रॉबिन scheduling, a small amount of time is assigned to each process in which it executes. This time is called time slice or time quantum. When time quantum expires, the process is printed from the CPU and replaced by another process in the circular queue. कि जितने प्रोसेस है उन सब के लिए टाइम फिक्स कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 5 प्रोसेस है तो ऑल प्रोसेस के लिए जो टाइम स्लाइस सेट किया गया वो 2 सेकेंड्स है. और एक अहम पॉइंट है कि अगर एक प्रोसेस का जो सीपीयू टाइम है, जो टाइम स्लाइस दिया जा रहा है उससे ही शॉर्ट है, तो देन क्या होगा. फॉर एग्जांपल P2 ने ओनली 1 सेकंड के लिए सीपीयू यूज करना है, उसका टास्क 1 सेकंड में ही कंप्लीट हो रहा है, तो जो टाइम क्वांटम है वो 2 सेकंड सेट किया गया है. तो देन क्या होगा कि P2 2 सेकंड नहीं लेगा बल्कि वो 1 पर ही स्टॉप कर देगा. मींस बाय विल उसको 1 सेकंड पर ही सीपीयू को रिलीज कर देगा. तो इस तरह सर्कुलर क्यू बनेगी और सर्कुलर क्यू की फॉर्म में राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग में जितने प्रोसेस हैं वो प्रिमिटिव वे में कंप्लीट होंगे. क्वेश्चन इज डिफाइन गैंट चार्ट. गैंट चार्ट इट इज अ टाइमलाइन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूशन ग्राफिकली. ग्राफिकली मींस के डायग्राम की फॉर्म में प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है उनकी तरतीब को रिप्रेजेंट करने के लिए ये टाइमलाइन यूज होगी. जितने प्रोसेस हैं उनमें से हर प्रोसेस कब एग्जीक्यूट हो रहा है और उससे नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है गैंट चार्ट के थ्रू शो किया जाएगा. डिफाइन स्टारवेशन और इनडेफिनिट ब्लॉकिंग. ऐसी सिचुएशन है कि जब एक प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी बहुत कम है उसको बिल्कुल भी चांस नहीं दिया जा रहा है एग्जीक्यूट होने का. सीपीयू इज कंटिन्यूअली बिजी विद हाई प्रायोरिटी जॉब्स. इट मींस कि वो जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको एवरी राउंड में इग्नोर किया जा रहा है, उसकी टर्न ही नहीं आ रही. तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द स्टारवेशन और इनडेफिनिट
blocking. Next is define process synchronization. It deals with various mechanisms to ensure orderly execution of cooperating process. कि जो process cooperate कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ share कर रहे हैं, उनकी एक तरतीब से एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगी, इसको इंश्योर करते हैं वो मैकेनिज्म्स. दैट मैकेनिज्म्स आर कॉल्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. नेक्स्ट इज डिफाइन रेस कंडीशन. इट इज द सिचुएशन वेयर मैनी प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट शेयर डेटा एट द सेम टाइम. कि जो डेटा शेयर हो रहा है उसको एक ही टाइम में एक से ज्यादा प्रोसेस एक्सेस करने की या चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द रेस कंडीशन. 25 क्वेश्चन है. डिफाइन क्रिटिकल सेक्शन. A section of code or collection of operations in which only one process may be executing at a given time is called critical section. Next question, question number 26. It is very important question. Define deadlock. It occurs when two processes are blocked and no one can proceed to execute. Two से ज्यादा भी हो सकते हैं कि deadlock is a situation when two or more processes wait for each other to finish and none of them finish. For example, 3 process है, तीनों wait में है और hold की condition में है. Means तीनों process में जो situation चल रही है वो ऐसी है कि कोई भी काम नहीं कर रहा, तीनों process wait कर रहे हैं और अपना काम भी फिनिश नहीं कर सकते. इवन के कुछ रिसोर्सेज उन्होंने होल्ड भी किए हुए हैं. इट मीन्स के जो रिसोर्स एक प्रोसेस ने होल्ड किया है वो उसकी वर्किंग के लिए सफिशिएंट नहीं है और जिस रिसोर्स का वो वेट कर रहा है वो किसी और वेटिंग प्रोसेस में लिया हुआ है. कौन सी लाजमी कंडीशंस है जो होंगी तो देन डेडलॉक अकर होगा. तो डेडलॉक अकरेंस के लिए दीज आर द 4 कंडीशंस जिनका एट अ टाइम अकर होना लाजमी है. इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी तो डेडलॉक अकर नहीं होगा, डेडलॉक टूट जाएगा. First is the mutual exclusion. There is a resource that cannot be shared. Means के at least एक resource ऐसा होगा जो कि share नहीं हो रहा. Next point is hold and wait. A process is holding at least one resource and waiting for another resource, which is with some other process. और जो process उसको hold किया हुआ है वो भी waiting situation में होगा. Next condition is non-preemption. Means preemption नहीं है. कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अलाउड टू टेक अ रिसोर्स बैक फ्रॉम अ प्रोसेस अंटिल द प्रोसेस गिव्स इट बैक. कि जब तक एक प्रोसेस वॉलंटरली रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उससे फोर्सिबली वो रिसोर्स मींस सीपीयू नहीं ले सकता. मींस देयर इज नो प्रीम्पशन. प्रीम्पशन अलाउ नहीं है. तो जब प्रीम्पशन नहीं है तो इट मींस के डेडलॉक अकर होगा. Next is circular wait. A set of process waiting for each other in circular form. For example, for process है, process 1 कुछ resources hold किए हुए हैं और other resources का वो wait कर रहा है. जिसका wait कर रहा है वो resource P2 के पास है और P2 जो है वो भी waiting situation में है और जिसका वो wait कर रहा है वो P3 के पास है. इस like that P3 ने अपने process लाइक दैट P3 को जो रिसोर्स रिक्वायर है वो P4 के पास है और इसी तरह P4 को जो रिसोर्स रिक्वायर है वो फर्स्ट वन P1 के पास है. तो दिस इज द सर्कुलर फॉर्म बनेगी. तो डेडलॉक के अकरेंस के लिए इन 4 कंडीशंस का एट अ टाइम फुलफिल होना लाजमी है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन एंड सर्कुलर वेट. ये 4 कंडीशंस है जो कि डेडलॉक अकरेंस के लिए जरूरी है. Next question is define Banker's algorithm. Banker algorithm is a resource allocation and deadlock avoidance algorithm that tests for safety by simulating the allocation for the predetermined maximum possible amounts of all resources. Means कि ये चेक करेगा different जो resources given है और उनको यूज करने के लिए जो different process है उनमें order set करेगा और उसको टेस्ट करेगा कि क्या ये ऑर्डर जो है अगर इंप्लीमेंट होगा तो देन जो सिस्टम है वो डेडलॉक सिचुएशन में तो नहीं जाएगा, सेफ स्टेट में रहेगा या अनसेफ में रहेगा. तो इस तरह डिफरेंट टेस्ट करते हुए जो अनसेफ है उसको अवॉइड करेगा और सेफ स्टेट के लिए तमाम पॉसिबल एक्टिविटीज जो है वो चेक करेगा.
बिफोर डिसाइडिंग वेदर एलोकेशन शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू, कि फाइनल एलोकेशन से पहले डिफरेंट पॉसिबल एक्टिविटीज को टेस्ट करते हुए सेफ स्टेट जो है वो बना लेगा। सेफ स्टेट क्या होती है? ऐसी स्टेट जिसमें डेडलॉक अकर नहीं होता, और अनसेफ स्टेट कौन सी है? जिसमें डेडलॉक अकर होता है। इसी तरह सेफ सीक्वेंस कहते हैं कि प्रोसेसेस की वो सीक्वेंस एग्जीक्यूट होने की जिसमें डेडलॉक अकर नहीं होगा और तमाम प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। बट अनसेफ सीक्वेंस में क्या होता है कि जितने प्रोसेस हैं वो इस तरतीब में एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि उससे फर्दर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, मींस डेडलॉक अकर हो जाएगा अनसेफ में। What is concurrency? A state in which a process exists simultaneously with another process. Next question is what is swapping? It is memory management technique. नाउ मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक आ गया है हमारा। तो मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक्स में स्वैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट स्वैप्स द प्रोसेस इनटू मेन मेमोरी टू एग्जीक्यूट इट एंड देन स्वैप इट आउट टू द बैकिंग स्टोरेज व्हेन रिक्वायर्ड। इट इज डन बाय स्वैपर। देखिए अब जो स्वैपिंग है हम ये बात करते हैं कि एनी प्रोसेस जिसने एग्जीक्यूट होना है वो रेडी क्यू में आएगा, और रेडी क्यू में आने की मीनिंग क्या है कि रैम में आएगा, और रैम में आना दिस इज कॉल्ड द स्वैपिंग। और जब उस प्रोसेस का काम कंप्लीट होता है तो उसको वापस बैकिंग स्टोर पर भेजा जाएगा। मेमोरी से वापस बैकिंग स्टोरेज पर जाना दिस इज कॉल्ड द स्वैप आउट। तो स्वैप इन एंड स्वैप आउट ये दोनों प्रोसेस मिलकर कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। और स्वैपिंग कौन करता है? स्वैपिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द स्वैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेजिंग। Paging is a memory management technique which is used for non-contiguous memory allocation. It is a fixed size partition scheme. In paging, both main memory and secondary memory are divided into equal fixed size partitions. Means कि main memory and secondary storage दोनों के जो पार्ट्स करेंगे उनका साइज इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल जितने भी पार्ट्स किए जाते हैं कहा जाता है कि भी उसमें जो है 100 बाइट्स का एक पार्टीशन बनाए, तो इट मींस कि मेमोरी में भी इतने साइज में ही होगी और सेकेंडरी स्टोरेज पर भी तमाम पार्टीशंस का यही साइज होगा। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में अकर इन पेजिंग। पेजिंग में अब जो प्रॉब्लम होता है, वैसे तो डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड टेक्निक फॉर हैंडलिंग मेमोरी मैनेजमेंट, बट इसमें जो प्रॉब्लम है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। 32 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है? व्हेन अ प्रोसेस इज एलोकेटेड अ पार्टीशन। नाउ वी कम to the difference between internal fragmentation and external fragmentation. What is internal fragmentation? When a process is allocated a partition in memory that is larger than process size, then some space is unused. In this way, memory is wasted because it is free but allocated to a process. For memory में जितनी स्पेस एक प्रोसेस को रिक्वायर है उसके साइज से ज्यादा, मीन्स कि जो उसकी रिक्वायरमेंट का साइज है उससे ज्यादा उसको मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करना। उसमें अब जो स्पेस प्रोवाइड होगी उसमें से कुछ स्पेस वो यूज कर रहा है, जो यूज नहीं कर रहा वो उसके पास अनयूज पड़ी है, बट उसे कोई और प्रोसेस भी यूज नहीं कर सकता बिकॉज वो उसके होल्ड में है। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन में होती है, और सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन को अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है कि व्हेन अवेलेबल फ्री होल्ड्स ऑफ मेमोरी आर नॉट एबल to hold an incoming process separately because these are non-contiguous but these are sufficient collectively। देखिए कि मेमोरी में फॉर एग्जाम्पल 150 बाइट्स फ्री पड़ी हैं, बट वो जो 150 बाइट्स फ्री पड़ी हैं वो इकट्ठी एक जगह पर नहीं है, कलेक्टिवली नहीं है। उसमें से 50 बाइट्स का ब्लॉक अलग है, 50 बाइट्स का सेपरेट है, 50 बाइट्स का उससे भी नॉन कंटीजियस फॉर्म में है। अब क्या होता है कि एक न्यू प्रोसेस आता है, उसको 100 बाइट्स चाहिए। 100 बाइट्स एलोकेट उसे नहीं हो सकती क्योंकि जो ब्लॉक्स है वो कंटीजियस नहीं है, जो 50-50 के पड़े हैं। इवन के अगर वो कलेक्टिव होते, कंटीजियस होते, तो देन जो न्यू प्रोसेस आया है 100 बाइट्स की रिक्वायरमेंट के साथ उसको अकोमोडेट किया जा सकता था, लेकिन अब वो अकोमोडेट नहीं हो रहे। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है?
कोलेसिंग होल्स। इन फ्री होल्स को इकट्ठा कर देना, इकट्ठा करने के लिए क्या होगा कि लिंक लिस्ट यूज होगी कि एक प्रोग्राम का एक पार्ट एक होल में फिट किया जाएगा और उससे नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो जो नेक्स्ट होल है उसमें फिट आएंगे, उसमें एलोकेट किए जाएंगे और उसका जो एड्रेस है वो लिंक लिस्ट में डाला जाएगा। तो इस तरह से लिंक लिस्ट को यूज करते हुए इन होल्स को कोलेस किया जाएगा, मिला दिया जाएगा एज अ सिंगल होल। तो ये इसका सोल्यूशन है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। नेक्स्ट इज डिफाइन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया जाता है, मींस प्रोग्राम के लॉजिकल सेगमेंट्स बनाए जाते हैं एंड एलोकेटिंग स्पेस फॉर दीज सेगमेंट्स इन मेमोरी सेपरेटली। और जितने ये सेगमेंट्स हैं इनको मेमोरी में अलग अलग जो है वो जगह पर एलोकेट किया जाता है। दैट जो सेगमेंट्स है, सेगमेंटेशन में जो पार्ट्स बनते हैं वो सेगमेंट्स कहलाएंगे और इन सेगमेंट्स का साइज डिफरेंट हो सकता है, मींस की वेरिएबल लेंथ हो सकती है, लेकिन पेजिंग में जो डिफरेंट पार्टीशंस बनाई जाएंगी तमाम पेज उनका साइज सेम होगा, उनका साइज इक्वल होगा, डिफरेंट नहीं होगा। देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन सेगमेंटेशन, कि सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम अकर हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, डिफाइन थ्रेशिंग। At some time, the processor may be spending most of its time swapping pages and doing little productive work. This condition is called thrashing. कि स्वैपिंग में टाइम ज्यादा लगता है लेकिन जो प्रोडक्टिव काम है वो कम होगा, तो इस सिचुएशन को कहेंगे थ्रैशिंग। क्वेश्चन नंबर 35, डिफाइन वर्चुअल मेमोरी। Virtual memory, it is a technique that is used to execute process that are not in main memory completely. Means कि main memory के पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो आने वाले प्रोसेस को मुकम्मल अकोमोडेट कर सके। तो उस सूरत हाल में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेसेस द करंटली रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ अ प्रोसेस इन मेन मेमोरी, कि उस प्रोसेस के जो उस टाइम वेरी नेसेसरी पार्ट्स हैं जो पहले एग्जीक्यूट होने हैं उन पार्ट्स को मेन मेमोरी में सेंड कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं दैट आर प्लेस्ड ऑन द बैकिंग स्टोरेज, और वो बैकिंग स्टोरेज पर पार्ट्स आएंगे, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बैकिंग स्टोरेज पे पड़े रहते हैं। इसी तरह जो करंटली एग्जीक्यूटिंग पार्ट्स हैं जब वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, मीन स्वैप आउट हो जाते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको स्वैपिंग किया जाता है। तो इस तरह उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है। और बैकिंग स्टोरेज का वो एरिया जो कि उस प्रोसेस के रिमेनिंग पार्ट्स को होल्ड किए हुए हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड द वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिमांड पेजिंग। Virtual memory can be implemented by a technique that is called demand paging. Question number 37, define page fault. When a page is demanded but it does not exist in memory, it is called page fault. तो page fault जब occur होता है तो इसका solution क्या है? Its solution is page replacement. Define page replacement. When a new page is put in memory by removing a currently loaded page that is not in use, this is called the page replacement. कि सिस्टम ने ऐसे पेज के लिए डिमांड की जो कि मेमोरी में अवेलेबल नहीं था, तो देन क्या होगा कि जो पेजेस मेमोरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, उनमें से ऐसे प्रोसेस को जो कि यूज में नहीं है उस पेज को स्वैप आउट करके जिस पेज की डिमांड की गई उस पेज को लोड कर देना। लोड करना मीन्स स्वैपिंग करना, मेमोरी में लाना, रैम में लेके आना, तो उस पेज को रैम में लोड करना, दिस इज कॉल्ड द पेज रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट इज डिफाइन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स जो कॉमनली यूज होते हैं, दीज आर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पेज ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एंड नॉट लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो ये 4 एल्गोरिदम्स है जो कि पेज रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स। देयर आर 3 मेथड्स, सीक्वेंशियल, रैंडम एंड इंडेक्स सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में क्या होता है कि जितनी भी फाइल्स हैं वो एक सीक्वेंस में स्टोर होंगी और जिस सीक्वेंस में बैकिंग स्टोर पर स्टोर की गई इन द सेम सीक्वेंस, इन द सेम ऑर्डर उनको एक्सेस किया जाएगा। बट रैंडम में क्या है कि तमाम फाइल्स के लिए एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट नंबर किसी भी प्लेस पर, लोकेशन पर जो है उन फाइल्स को रैंडमली स्टोर किया जाएगा और जब एक्सेस करना है तो उस नंबर से
एक्सेस किया जाएगा। फॉर इंडेक्स सीक्वेंशियल जो है, इसमें सीक्वेंशियल एंड रैंडम दोनों को कंबाइन किया गया है कि इसमें एक इंडेक्स टेबल मेंटेन किया जाता है, जो कि इंडेक्स क्या है, एक की है, एक प्राइमरी वैल्यू है, जो कि तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं जो स्टोर करने हैं, फाइल्स हैं, उनको अलॉट की जाएगी और उसको मेंटेन करने के लिए एक इंडेक्स टेबल बनेगा और देन जो रिकॉर्ड्स आएंगे उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस में आएंगे। तो इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड जो है ये सीक्वेंशियल एंड रैंडम दोनों को कवर करता है, दोनों के बेनिफिट्स जो है इसमें आ जाते हैं। सीक्वेंशियल मेथड स्लो है बट रैंडम मेथड जो है ये फास्ट है। और इंडेक्स सीक्वेंशियल क्या है, इंडेक्स सीक्वेंशियल का ड्रॉबैक ये है कि इसमें मेमोरी वेस्ट होगी, स्टोरेज ज्यादा रिक्वायर होगा, बिकॉज इंडेक्स टेबल जो है उसको भी क्रिएट एंड मेंटेन करना पड़ेगा और इसमें जो है वो बर्डन ज्यादा आएगा। तो इन तीनों में जो बेस्ट वन है दैट इज द रैंडम मेथड और ये सिलेक्ट किया जाता है कि किस मेथड को यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट। So here operating system Viva and interview questions are completed. Best of luck. चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।